हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न टुगेदर। तो आज हम यूकेरोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। वी ऑल नो दैट इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज़ नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज इज प्रेजेंट। जो ऑर्गेनेलिज होती थी उनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती थी। इन प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज़ ओनली वन एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स एक ही मेम्ब्रेन होती थी अराउंड द cell. One cell envelope is present around the cell. But in eukaryotic, true nucleus is present, and in eukaryotic, two envelope system of organization is present. It is important. Envelope system of organization is present means जो one envelope होती है वो around the cell and second is around the organelles. So in this membrane bounded organelles is present in eukaryotes like mitochondria, chloroplast, lysosomes, nucleus, vacuoles, Golgi bodies, etc. These all organelles are membrane bounded. And in eukaryotics, some necked or without envelope organelles are also present. In this non-enveloped organelles like ribosomes and centrioles are also present. These are membraneless organelles which are present in the eukaryotic cell. बट जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं उनमें मेम्ब्रेन्स की क्या ज़रूरत होती है ताकि वे अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म कर सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर बायोकेमिकल रिएक्शन. So membrane covered cell organelles function as a distinct compartment where a series of specific reactions can go on without any interference from other biochemical reaction of the cell. जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, हम सभी के अपने अपने रूम्स होते हैं सो दैट कि हमें कोई डिस्टर्ब न कर सके देर, सो दैट कोई इंटरफेयर न कर सके हमारे काम में. तो उसी तरह सेल्स में भी डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं लाइक द ऑर्गेनलीज, सो दैट कि उनको उनके फंक्शन परफॉर्म करने में कोई भी इंटरफेरेंस न कर सके. सो दिस इज द प्लांट सेल. इन प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट, but in animal cell there is no cell wall is present, and in this large vacuole is present. It is important, and vacuole helps in the water balance in the plant cell. And in animal cell small vacuole is present. In this is a plasmodesmata, एंड जो प्लाज्मोडेस्मेटा है वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. सो इट इज़ द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है. जैसे ब्रिज दो एरिया को जोड़ता है उसी तरह दिस ब्रिज connect the two cells so that it transport the material. So it is a cytoplasmic bridge होता है between adjacent plant cell developing in minute pores of the ball. This is the minute pores and these form a protoplasmic continuation called, उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट. ये कंटिन्यूएशन फॉर्म करते दूसरे सेल के साथ जिसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट. In this microtubules present, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, न्यूक्लियस विच इज ट्रू न्यूक्लियस मतलब इसमें मेम्ब्रेन होती है अराउंड, एंड इन दिस न्यूक्लियस डीएनए इज प्रेजेंट विद हिस्टोन प्रोटीन. वेल डीएनए स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. Golgi apparatus is present, plasma membrane present, vacuole, middle lamella, cell wall, mitochondria is present, and mitochondria is the powerhouse of the cell. Ribosome is present, and ribosome is the protein factories of the cell. Chloroplast is present, cytoplasm is present, peroxisomes is present, and in this cell wall and cell membrane both are present. This is the animal cell. In animal cell wall is totally absent. Only one membrane is present which is cell membrane. In this microvilli are present which increase the surface area of the cell. Central is present, Golgi apparatus, nuclear envelope, two nucleus is present, nucleolus, nucleus, cytoplasm, rough endoplasmic reticulum. These all are present in the animal cell. नेक्स्ट है यूकेरोटिक सेल. दिस इज द यूकेरोटिक सेल. यूकेरोटिक, यू मीन्स ट्रू. यू का मतलब ही होता है ट्रू, मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड. कैरियन मीन न्यूक्लियस. इन यूकेरोटिक सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन विच सेल एनवेलप इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस chromosomes are present. In chromosome DNA is present.
विच आर एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होती हैं डीएनए में यूकैरियोटिक सेल्स में, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं दैट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू द सेल। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल्स को, और ये 3 फिलामेंट का बना होता है। साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? 3 फिलामेंट का, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। एंड द साइटोस्केलेटन मेनली मेड अप ऑफ द प्रोटीनेशियस फिलामेंट। ये प्रोटीन्स का बना होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट है, साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? प्रोटीनेशियस फिलामेंट। ये जो फिलामेंट होते हैं ये प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। एंड इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन होती है जेनेटिक मटेरियल इनटू क्रोमोसोम। It is present in the protista, fungi, metaphyta and metazoa. Phyta means plant and zoa means animals. Cell envelope is formed of only plasma lemma in animal cell, because in animal cell wall is absent. Cell wall जो होते totally absent होती है, and in plant cell it is made up of the plasma lemma and cell wall, क्योंकि plant cell, fungi and some protista में cell wall भी होती है and cell membrane भी होती है। जो प्रोटोप्लास्ट होता है इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 1 और मोर वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये लिविंग मटेरियल होता है सेल का, विच कंटेन द 1 और मोर वैक्यूल्स विच आर वेसिकल्स एंड कंटेनिंग एक्वस सेल साप, जिसमें वैक्यूल्स होते हैं। जो प्लास्टिड अक्कर इन ओनली प्लांट सेल, बिकॉज प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस होती है, सो दैट दे मेक देयर ओन फूड। फर्स्ट है हमारे पास सेल वॉल विच इज प्रेजेंट अराउंड द प्लांट सेल। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल 1665 में इन द कॉक सेल। सेल वॉल रिजिड होती है, सेमी इलास्टिक होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल। इन प्लांट, फंजाई एंड सम प्रोटिस्टा लाई आउटसाइड द प्लाज्मा लेमा। ये सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है सेल वॉल। सेल वॉल इज नॉट कम्प्लीटली डेड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सो दैट इट हेल्प टू परफॉर्म द फंक्शंस एंड आल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट एंड टू द सेल एंड प्रोटेक्शन। Chemical composition of the cell wall is water, hemicellulose, pectin substances, lipid, proteins, microfibrils। जो water का content होता है that is 30 to 60% and it provide the elasticity to the cell। Sorry, hemicellulose जिसका content होता है 5 to 15%, pectin का होता है 2 to 8%, whereas lipid इज़ 0.5 to 3% तक होता है। जो प्रोटीन्स होते हैं दैट इज़ 1 to 2% एंड माइक्रोफाइब्रिल्स आर 20 to 40%। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, दैट इज सेलुलोसिक, माइक्रोफाइब्रिल्स, पैक्टिन होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं सेल वॉल में। तो जो सेल वॉल होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, दैट इज मैट्रिक्स, माइक्रोफाइब्रिल्स एंड डिपोजिशन। जो मैट्रिक्स होती हैं वो कंसिस्ट करता है, उसमें क्या क्या होता है, दैट इज वाटर, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, लिपिड एंड प्रोटीन्स। जो पैक्टिन होता है वो डिटरमाइन करता है हाइड्रेशन ऑफ सेल वॉल को, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, एंड इट्स इलास्टिसिटी तभी होगी जब उसमें हाइड्रेशन होगी। ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स में हेल्प करता है। हेमिसेलुलोज क्या करता है, इट इज़ अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, डिफरेंट पॉलीसैकेराइड का बना होता है, दैट बाइंड माइक्रोफाइब्रिल्स को मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करता है। बाइंड माइक्रोफाइब्रिल टू मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। लिपिड क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस अक्रॉस द वॉल, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं लिपिड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं सम ऑफ देम एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। उसमें प्रोटीन्स हैं जो कंट्रोल करती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, जैसे कि एक्सटेंसिन विच कनेक्ट पैक्टिन विथ हेमिसेलुलोज के साथ कनेक्ट करता है पैक्टिन को विथ हेमिसेलुलोज। सेकेंड है एक्सपेंसिन। एक्सपेंसिन हेल्प्स इन एडिशन ऑफ न्यू माइक्रोफाइब्रिल्स इन द वॉल। जो एक्सटेंसिन होता है वह पैक्टिन को कनेक्ट करता है विद हेमिसेलुलोज के साथ, जबकि जो एक्सपेंसिन होता है हेल्प करता है एडिशन ऑफ
न्यू माइक्रोफाइब्रिल्स इन द वॉल में एडिशन करता है माइक्रोफाइब्रिल्स की। नेक्स्ट है एजीपी प्रोटीन इज हेल्पफुल ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेल, के लिए प्रोटीन होती है एजीपी। नेक्स्ट है माइक्रोफाइब्रिल्स, इट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल, दैट इज microfibrils are the structural elements of the cell and it provide a rigidity to the cell wall को rigidity कौन provide करता है ताकि cell wall rigid रहे, that is microfibrils। and in plant microfibrils are formed of cellulose, that is important। a cellulose microfibrils contain 2000 to 2500 parallel straight cellulose, 2000 से 2500 cellulose यूनिट्स होती हैं विच आर कनेक्टेड बाय द बीटा 1,4 लिंकेज ग्लूकोज, मतलब इसमें जो ग्लूकोज होते हैं वो 2000 से 2500 इतने ग्लूकोज होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकेज बीटा 1,4 लिंकेज एंड फॉर्म द सेलुलोज। इन प्राइमरी वॉल देयर आर 2 वॉल, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। इन प्राइमरी वॉल में जो माइक्रोफाइब्रिल्स वे भी होते हैं एंड लूजली होते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल में इट इज़ क्लोज एंड पैरेलल अरेंजमेंट होता है। इन फंजाई द माइक्रोफाइब्रिल्स आर मेड ऑफ काइटिन एंड फंगल सेलुलोज और पॉलीमर ऑफ बीटा 1,4 एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन यहाँ पे ग्लूकोजेमाइन होगा, बीटा ग्लूकोजेमाइन का बना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, इस तरह से पूछा जाता है कि सेलुलोज में किस तरह की लिंकेज होती है, दैट इज बीटा 1,4 लिंकेज। एंड जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, दैट इज काइटिन एंड फंगल सेलुलोज। एंड इसमें किस तरह की लिंकेज होती है, दैट इज बीटा 1,4 लिंकेज, और किससे बना होता है, एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है, दैट इज सेलुलोज। एंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज काइटिन। और जो सेल वॉल होती है प्लांट की, दैट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। सो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि प्लांट बहुत ज़्यादा है, तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है, सेलुलोज, और सेकंड में आ गया काइटिन। इट अक्कर्स इन द एक्सोस्केलेटन, काइटिन जो होती है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड लाइक एंड इंसेक्ट क्रस्टेशियंस में होती है, जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है। थर्ड है हमारे पास सेल वॉल डिपोजिशन, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू एंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल, दैट इज डिपोजिशन हो गया सिलिका, नॉन सिलिशियस मिनरल्स, क्यूटिन, सुब्रिन, वैक्स एंड लिग्निन। फर्स्ट है सिलिका, डिपोजिटेड इन द आउटर वॉल ऑफ द ग्रास स्टेम, इसमें होती है ये जो ग्रासेस होते हैं उनकी स्टेम होती हैं, ग्रासेस लीव्स होती हैं, सम टेरिडोफाइट्स हो गए लाइक इक्विस्टिम। इक्विस्टिम इज ऑल्सो नोन एज द होल्स टेल, जो इनमें होती है ये सिलिका, इनकी आउटर वॉल में। सिलिका प्रोवाइड स्टिफनेस प्रोवाइड करती है वॉल को एंड प्रोटेक्ट करती है प्लांट को फ्रॉम फंगल अटैक, सो दैट फंगल जो है डिस्ट्रॉय न कर सके उस प्लांट को, लाइक ग्रासेस। नॉन सिलिशियस मिनरल्स, आयरन एंड कैल्शियम आर टू कॉमन सेल डिपोजिशन स्पेशली इन aquatic habitat like कारा। क्यूटिन, क्यूटिन occurs in the outer epidermal walls of land plants and reduce the rate of transpiration, को ये reduce कर देती है, which reduce the rate of transpiration, that is क्यूटिन। नेक्स्ट है सुब्रिन, it makes the cell wall impermeable to water and सो दैट ट्रांसपिरेशन ज़्यादा न हो सके। अक्कर्स इन कॉरेक्स सेल्स एंड एंडोडर्मल सेल्स में होता है ये। वैक्स जो होते हैं वाटर रेपेलेंट होता है एंड चेक ट्रांसपिरेशन को चेक करता है। एंड लिग्निन जो होता है इट इज़ अ वाटर इनसोल्यूबल एंड हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथनिंग नेटवर्क ऑफ सेल वॉल दैट कनेक्ट माइक्रोफाइब्रिल्स विद द मैट्रिक्स, एंड ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है वॉल्स को। कंपोनेंट और लेयर्स के जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज मिडल लैमिना, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। इट इज़ द layers of cell wall. First is middle lamella, primary wall and secondary wall. This is the protoplast and this is secondary wall. There are many 3 secondary walls that represent S1, S2 and S3. Then
प्राइमरी वॉल एंड देन मिडल लैमेला, दैट इज मिडल लैमेला। जो मिडल लैमिना होता है ये थिन होता है, अमorphous होता है एंड connecting layer between two adjacent, it is important, middle lamella is the connecting means cementing, जिस तरह सीमेंट कनेक्ट का काम करता है उसी तरह ये सीमेंटिंग लेयर है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। जैसे दो सेल एक दूसरे से अटैच होंगे तो वो किसके थ्रू होंगे, दैट इज प्लाज्मा लेमा। इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म फ्रॉम सेल प्लेट से। फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, मिडल लैमेला बिटवीन द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस होती है। जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज फॉर्म फ्रॉम द सेल प्लेट से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है दैट इज मिडल लैमेला एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट जो मिडल लैमेला किसका बना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा भी जाता है। मेड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, पैक्टीन एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, मेनली कैल्शियम का बना होता है ये। सॉफ्टनिंग ऑफ राइप फ्रूट की, जो पके हुए फ्रूट होते हैं उनकी सॉफ्टनिंग जो होती है ड्यू टू पार्शियल सोल्युबलाइजेशन ऑफ पैक्टिन होता है उनमें, प्रेजेंट इन मिडल लैमेला। प्राइमरी वॉल, सेकेंड वॉल इज प्राइमरी वॉल। इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल विच इज लेड इनर टू मिडल लैमेला। सबसे आउटर कौन सा हो गया, मिडल लैमेला, विच कनेक्ट द टू एडजेसेंट सेल्स। एंड इनर टू मिडल लैमेला क्या होता है, यह है मिडल लैमेला एंड इनर टू मिडल लैमेला इज प्राइमरी वॉल। इफ इट इज़ द आउटर वॉल और इफ सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट, अगर किसी में सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है तो उसकी जो आउटर वॉल होती है दैट इज प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल, इनर टू प्राइमरी वॉल इज द सम ऑफ द प्लांट। आउटर मोस्ट में होगी मिडल लैमेला, मिडल लैमेला के अंदर हो गया मिडल लैमेला, मिडल लैमेला के अंदर हो गया प्राइमरी वॉल एंड इनर टू प्राइमरी वॉल इज सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो 2 या 3 टाइप्स की होती हैं, S1, S2 एंड S3। समटाइम टर्शियरी भी होती है, ये कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। इनर टू प्राइमरी वॉल इज सेकेंडरी वॉल। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल डिपोजिशन ऑफ न्यू मटेरियल, जो बाहर से न्यू मटेरियल ऐड हो ओवर द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सच एज टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एक्सरेशन। इट फॉर्म्स द पिट्स बना देती है ये। देयर आर 3 लेयर्स होती हैं, S1, S2 एंड S3। सी दिस इज द मिडल लैमेला विच जो ये येलो कलर की लाइन है ये मिडल लैमेला है और ये कनेक्ट कर रही है 2 सेल्स को। दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकंड सेल। ये प्राइमरी वॉल क्या है, 3 सेकेंडरी वॉल, S1, S2 S3, ये सेकेंड वॉल है एंड दिस इज द प्राइमरी वॉल ऑफ second cell S1, S2, S3. So it connect the 2 adjacent cell which is middle lamella. So इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं। अगर कुछ जैसे ये भी इम्पोर्टेंट है कि कई सेल्स में टर्शरी वॉल भी होती है, वो तब होती है जब इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल जो होती है समटाइम डिस्टिंक्ट, केमिकली डिस्टिंक्ट होती है। जैसे S1 हो गया, S2 हो गया सेकेंड वॉल, थर्ड होगी S3। मान लो कि इसमें जो कंपोजिशन है केमिकल्स वो डिफरेंट होगी, लाइक इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्जाइलेंस, तो इसको हम मानेंगे कि इट इज़ अ टर्शियरी वॉल। इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल इज समटाइम डिस्टिंक्ट केमिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्जाइलेन, सो इट इज टर्शियरी वॉल। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस है कुछ। द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल, जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं जो अपना डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सेल वॉल ऑफ एल्गा इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, ग्लैक्टेन्स, मैनोज, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। मिडल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट और आल्सो मैग्नीशियम पैक्टेट, बट जो ज़्यादा अमाउंट में होता है दैट इज कैल्शियम पैक्टेट। क्योंकि मिडल लैमेला के होते हैं आउटर मोस्ट होता है, सीमेंटिंग लेयर होती है विच कनेक्ट द 2 एडजेसेंट सेल, इट इज़ अ सीमेंटिंग लेयर, ये याद रखना है। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द मैमलियन इथ्रोसाइट। मैमलियन इथ्रोसाइट जो RBCs होती हैं दे आर विदाउट न्यूक्लियस। इनके ये मेन फीचर है दैट विदाउट न्यूक्लियस, इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्लांट सीव ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ट्यूब सेल्स होते हैं, और जो RBCs होते हैं उनका कॉमन कैरेक्टर यही है कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ
सेल वॉल जब हमने पीछे डिस्कस किया था तब हमने बात की थी कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है दैट इज माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल वॉल। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लाइक सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द prokaryotic cell. So please guys do subscribe this channel and like the video.